Hello everyone and welcome to Sambhav Law. In today's session, we have with us Tanvi Jain, who has scored very well in the CBET LLM PG exam of 2023, and she's currently a student of Delhi University second 2-year program of LLM. And accordingly, she will be sharing with us her strategy, her story, and how one can prepare for the CBET LLM exam that is coming in the next 2 months. And accordingly, I would like to welcome you to the channel. Hello everyone, and this is Tanvi Jain. As sir introduced me, I am currently pursuing my LLM that is 2-year program from Delhi University, and I have completed my LLB from Government Law College, Kota. And as sir told, I have given CUET entrance exam 2023. That was on 9th of June, and I scored decent, so I have got into TU. That's why I'm here. Yeah. So accordingly, Tanvi, firstly, I would like to start with the first question that, what was your reaction when you saw the CVT paper and how difficult did you find while attempting it? And how did the whole thing go? Exactly. Actually, sir, when I saw the paper, it was moderate for me. It was doable. जैसा जैसे मैंने पेपर अटेम्प्ट करती गई वैसे वैसे it was like more of the straightforward questions, not as like CLAT one, in which we see like more detailed and case general current affairs and current legal affairs, as we can say. So it was, in my opinion, it was doable and not that tough for me. I see. And accordingly, Tanvi, if I just ask you, while you were preparing for the exam, CVT LLM exam, what was your strategy? What resources did you use? And like, how did you prepare for because there was part A also, part B also. How did you manage this whole thing? Okay. So, firstly, we will discuss part A and then part B. Part A में actually English, maths, and some current GK was there. For maths, I was not that horrific जैसे कि सबको maths से डर लगता है. It was doable for me. जो topics मुझे आते थे, मैंने वो बहुत अच्छे से prepare कर लिए थे, और जो नहीं आते थे, I just left them. मैंने उन पे because I have prepared in last 2 months. Only 2 months I have prepared sincerely for the CUET exam, not more than that. Yes, my core was good for the part B. In my 3-year LLB, I was good enough to get the concept and give the part B attempt. So I didn't focus on the maths, on those topics जिनमें मुझे doubt था या मुझे पता था मैं नहीं कर पाऊंगी इतने कम time में. So I left those topics. For English, I preferred MCQs and I attempted mocks as well. For sure, part A के लिए मैंने एक book refer करी थी जो सिर्फ part A के लिए थी. उसके लिए मैंने वो सारे questions लगाए थे, practice करी थी. रीजनिंग के लिए, जीके के लिए जितना मुझसे बन पाया मैंने उतना किया. बाकी आई लेफ्ट दैट. मैंने उस पार्ट ए का ज्यादा स्ट्रेस नहीं लिया. एंड फॉर पार्ट बी आई प्रिपेयर्ड वेरी वेल. जो मैं सब्जेक्ट्स कर सकती थी, जो मेरे ऑलमोस्ट मेरे को जिन पे उन पे कमांड था, मैंने उनको अच्छे से रिवाइज किया. और जो मुझे लगता था कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी, इट्स नॉट दैट डुएबल, उनके मैंने सिर्फ एमसीक्यूज करे, मॉक्स लगाए. एज संभव सर प्रोवाइडेड द मॉक्स जो मैंने ज्वाइन किए थे. मैंने क्या किया था कि उन्हीं मॉक्स को लेकर उन्हीं मॉक्स को बार बार दिया, सारे मॉक्स किए, और जो भी सारी गलतियां थी आई जस्ट नोटेड देम डाउन इन अ रजिस्टर. एंड जस्ट मैंने उन्हीं को बार बार थॉरली रिवाइज किया, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि जो गलतियां हैं मैं उसके लिए कंसेप्ट या बुक्स वापस रेफर कर सकूं एट दैट एंड मोमेंट ऑफ टाइम. सो दैट्स ऑल वाज माय 1.5 month. हाँ, अच्छा तन्वी, इफ आई कम टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज देखिए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो मेन कंसर्न होता है वो ये होता है कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा है. अगर हम केवल आप देखिए लॉ के अंदर, अब केवल लॉ का पेपर आएगा, पार्ट बी आएगा, ए नहीं आएगा, तो वो तो पॉइंट नहीं है. लेकिन पार्ट ए के अंदर भी इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं. सो आपके हिसाब से मतलब कैसे प्रिपरेशन की जाए इतने सारे सब्जेक्ट्स की? किस पे ज्यादा फोकस है, किस पे, क्या आपने कैसे उस चीज को वो किया था? एज आई टोल्ड कि मैंने इतना लोड सब सब्जेक्ट्स का नहीं लिया. मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे थे कि किससे कितना कितना वेटेज है. मैंने वीडियोस भी काफी देखी, संभव हो सकी भी मैंने काफी वीडियोस देखी थी, नो डाउट. तो मैंने उससे एक आइडिया लगा लिया था कि इस सब्जेक्ट से इतने इतने क्वेश्चन आने वाले हैं. तो मेरा फोकस ये था कि जहां जहां पर मेजर, जैसे कि सीपीसी, जो कि हमारे मेजर सब्जेक्ट है जनरली फॉर लॉ स्टूडेंट्स, वो मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से करके जाऊंगी. एंड जैसे टैक्सेशन लॉ, कंपनी लॉ, उनमें मैंने बिल्कुल लोड नहीं लिया था, वो मेरे अच्छे थे भी नहीं एट द टाइम ऑफ एलएलबी ऑल्सो. तो वो मैंने छोड़ दिए थे एज इट इज. जितना आया, जितने मेरे को मॉक्स में मिले, बस मैंने उनको ही रिवाइज किया, उन्हीं को माइंड में फीड किया, अदरवाइज मैंने कुछ नहीं किया. सो जो सब्जेक्ट्स का कम वेटेज था वो मैंने वैसे ही साइड आउट कर दिए थे, और जो मेरे को आते थे, अगर छोटे भी हैं, तो मैंने उनको रिवाइज कर लिया था, सो दैट अगर उनमें से 1-2 क्वेश्चन भी बैठते हैं, सो आई कैन अटेम्प्ट दैट. ओके. एंड तन्वी, इफ आई जस्ट आस्क यू कि व्हाइल यू वर प्रिपेयरिंग, आपने ये जितना प्रिपरेशन वगैरह का था,
आपका एक मैं अगर पूछूं टाइम पीरियड कितना था, कि आपने कितना टाइम मतलब एक्सप्रेसली आपने सीवीटी के लिए दिया, या फिर उसके पहले आपकी प्रिपरेशन थी, आपने कैसे उस चीज को मैनेज किया, टाइम पीरियड आपका कैसा रहा था प्रिपरेशन का? Okay, so the time management was like that. एज आई टोल्ड कि मैंने सिर्फ 1.5-2 महीने ही सिंसियरली सीयूईटी के लिए दिया था, क्योंकि मेरा जो 3 ईयर एलएलबी था उसमें मैंने नो डाउट जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, मेजर सब्जेक्ट्स, वो मैंने अच्छे से उस टाइम पर भी पढ़े थे। तो मुझे उन 1.5-2 महीनों में उन सब्जेक्ट्स पे इतना फोकस की नीड नहीं थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ब्रशअप करना था अपने माइंड में, सिर्फ की पॉइंट्स, लीडिंग जो मेन टॉपिक्स होते हैं अपने, मैंने बस वो रिवाइज किए थे। और बाकी 1.5-2 महीने में आई यूज टू सिट फॉर, यस, फॉर अ गुड टाइम, इनफ टाइम, लाइक 8 to 10 hours वी कैन सी, क्योंकि लास्ट के 1.5 महीना तो मैंने दिया था हाँ, डेडिकेटेड, मैंने पूरा अच्छे से ही किया था प्रिपरेशन। दैट वाज द मतलब टाइम क्रक्स ऑफ मैनेजमेंट का वन एंड मतलब क्रक्स ऑफ द होल थिंग, बिकॉज द पॉइंट इज कि जैसे हाँ मैं भी कोशिश ये करता हूँ, व्हेन स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर क्या 1.5 महीने में 2 महीने में पॉसिबल है, आप उस चीज का एक लिविंग एग्जांपल है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपने उस चीज को करा है। बस ये था कि हाँ, आपकी प्रिपरेशन कॉलेज में फाउंडेशन अच्छा था, प्रिपरेशन आपने बढ़िया की हाँ थी, जिस तरह से एक बेनिफिट मिलता है, हाँ, लेकिन जो लास्ट के 1.5 महीने की मेहनत है आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते हो। और पॉसिबल सब कुछ होता है, चलो 2 ईयर नहीं मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 3 ईयर मिलेगा, नहीं तो बीएचयू में मिलेगा, नहीं बीबीआईयू में मिलेगा, कहीं ना कहीं तो आपको सीट मिलेगी, बस आपको प्रिपरेशन और प्रयास को नहीं रोकता। जैसे आपने कहा 8 से 10 घंटा मैं लगी रही, तो इस बात से हाँ भी सर। सीखने वाला है कि डिसिप्लिन इज, मतलब आप बेसिकली अगर डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अगर स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कैसे डिसिप्लिन, अगर हम लोग बात करें हाउ वन लाइक कैसे वो किया जाता है आपके हिसाब से? Sir, actually, it was for me do or die situation, because it was my last attempt to get a good college, as I have completed my LLB only from a government college, not that NLU or anything than that. So, and due to my family situations as well, I did कि मुझे करना ही है. And if you don't mind, sir, in my family there was situation something. उसके साथ साथ मैंने उन 1.5-2 महीने में, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं बस अभी नहीं करूंगी तो मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन है, उसके बाद मेरे लास्ट पास ऑप्शन। कुछ भी नहीं होगा। सो आई हैव टू डू दैट। बस मैं खाना खाती थी, सोती थी, एंड मैं मेरे एक रूम में बंद रहती थी, मेरे सारे नोट्स एंड ऑल रिवीजन मॉक्स, बस यही चलता होता था 1.5-2 महीने। दैट्स इट। आई सी। एंड ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उस मतलब जो भी आपका वो रहा उसमें, उसको एक दिमाग में आपके चल रहा है, उसके साथ आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं एक मतलब बताता है कि कितना मतलब होता है। इट्स नॉट वेरी इजी टू प्रिपेयर, डेफिनेटली हर मतलब सिचुएशंस होती है, वो होता है, बट उसमें यस सर, परसिवियर करके इट उसको, वाज अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर टफ मी। सिचुएशन भाई कंपार्टमेंटलाइज करके, लेकिन फिर उसके बाद भी आपको एग्जीक्यूट करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात होती है डेफिनेटली, ये मतलब आई थिंक सो इट इज वेरी इंस्पायरिंग ये चीज सुनना कि हाँ, किसी ने किया है, ये चीज पॉसिबल होती है। और जैसे अब मैं तन्वी, इफ आई गो टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट जो अपना पार्ट होगा उसका, कि वंस यू क्रैक द एग्जाम, एग्जाम क्रैक करने के बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े कॉलेज में आप पहुंचते हो, वहां का इम्पैक्ट, वहां का इन्वायरमेंट किस तरीके का है, अब आपको क्या चेंज लगता है अपने उसके अंदर? ओके, it's a very good question. As I am here in Delhi University, actually I would mostly focus. I am from Kota, Rajasthan. So Kota सब लोग जानते हैं कि नीट जेई के लिए इट्स लाइक हब, एजुकेशन हब। बच्चा ओवरऑल इंडिया से इसलिए आता है वहां पे क्योंकि वहां पे एनवायरनमेंट है फॉर दैट नीट और जेई। आपको कोटा में उसके अलावा बहुत कुछ चीजें, बट दैट इज वेरी स्पेसिफिक टू द नीट और जेई। सेम वी कैन से फॉर द जुडिशियरी और लॉ एस्पिरेंट्स, लाइक in Delhi, environment is very good, very top notch, I must say. And the obviously my batchmates on and my whole surroundings are like this कि सभी बच्चों को करियर चाहिए, they are very much dedicated. आपको कंपटीशन मिलेगा, if you want to go for judiciary then you will find that kind of persons as well. If you want go for litigation तो आपको वैसा माहौल मिल जाएगा, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो आपको वैसा मिल जाएगा, आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा है। एंड सबसे मेन थिंग जो जिसपे मैं इंसिस्ट करना चाहूंगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनवायरनमेंट काफी अच्छा है। इफ स्टूडेंट वांट्स टू, लाइक अगर वो करना चाहे तो इट इज वेरी डूएबल इन दिस एनवायरनमेंट। अगर बच्चा यहाँ नहीं कर पा रहा है तो आई डोंट थिंक कि मतलब दिस फिर इज द कहीं बेस्ट प्लेस मतलब फॉर बेस्ट एनी प्लेस टू बी कॉम्पिटिटिव एनी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिल्कुल एस्पिरेंट्स। बिल्कुल। हाँ हाँ, एंड बिकॉज द पॉइंट इज कि जितना मेरा एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहां पे आपको हर तरीके के, आपको जैसे यूपीएससी के आपके एस्पिरेंट्स भी मिलेंगे वहां पे यस सीएलसी यस उसमें, और उसके अलावा आपको जुडिशरी के भी मिलेंगे, अलग अलग चीजों के आपको मिलेंगे, और वो पूरा एक यस यस यस। ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि आपको आपके साथ वाले लोग मिलते हाँ हैं,
पूरे मेहनत के साथ कोई लाइब्रेरी में बैठ के प्रिपेयर कर रहे हैं, और प्लस टीचर्स भी अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को। इफ आई मतलब मैं उस यस चीज सर। को वो कर रहा हूँ कि आपको प्रिपेयर अगर करना है तो हम उतना आपको परेशान नहीं करेंगे कि भाई तुम नहीं असाइनमेंट बनाओ, नहीं तुम ये करो, नहीं तुम वो करो। तो वो जो चीज एक होती है, और प्लस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम है, दैट इज वन ऑफ दोज फैक्टर्स जो कि बहुत ज्यादा एक आपको पीस ऑफ माइंड देता है एट द बैक ऑफ द हेड, कि मैं अगर यहाँ से निकल के कभी भी लिटिगेशन में जाता हूँ, इफ आई गो टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो वहां पे एक पूरा एलुमनाई बेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सपोर्ट आपको दे सकता है अगर आप कायदे से नेटवर्किंग करो। साथ ही में जब आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे एक प्रॉपर नेटवर्क आपको मिला हुआ है। यहाँ से जब आप निकल के जाओगे तो फिर ये भी है कि आपको पहली बात तो वो प्रिपरेशन आपकी कहीं जा नहीं रही है, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर टीचिंग लाइन में जाते हो तो नेट क्वालिफाई करके यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बहुत ही बढ़िया वहां का वो है। और स्कोप जो होता है वो बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है आपका इस एलएलएम को परस्यू करने की वजह से। और एक बहुत ही बेस्ट पार्ट ये है, द फीस इज क्वाइट रीजनेबल, जिसकी वजह से भी आप मतलब प्रेफर की स्टूडेंट्स अगर कोशिश कर रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू से अपना एलएलएम अगर कर पाए तो बहुत ही बढ़िया एक रहता है डेफिनेटली। कि यार आपका एलएलबी उतना वो नहीं गया तो एलएलएम अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर पा रहे हो, भले 2 ईयर हो भले 3 ईयर हो, काफी एक अच्छा आपको बेस मिल जाता है आफ्टर लॉ, कि भाई हाँ चलो मुझे अभी टाइम है, मैं भी आराम से चीजें करना चाहता हूँ, है ना, ये चीज एक हो जाती है। अच्छा तन्वी, जैसे इसमें मैं अगर एक चीज और ये पूछता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लोग मतलब कहते हैं कि हाँ जुडिशरी इज क्वाइट, मतलब वहां पे बहुत लोगों का सिलेक्शन होता है, तो आपके हिसाब से ऐसा क्या है कि वहां पे इतना सिलेक्शन होता है, और आपके हिसाब से एक जुडिशरी एस्पिरेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरमेंट थोड़ा सा कैसा है, थोड़ा डिटेल में अगर आप बता पाओ थोड़ा सा। ओके सर, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ पे आपको हर तरह के बच्चे मिलेंगे। एंड इन माय ओपिनियन, जैसा कि मैं देख रही हूँ, ज्यादातर ज्यादातर जो इंक्लिनेशन है दैट इज टुवर्ड्स जुडिशरी। सो यहाँ पे क्या वो चीजें, मतलब अगर सामने वाला बच्चा पढ़ रहा है, यू आर सीइंग योर कंपटीशन लाइक एट पार, आपके सामने वो बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, तो वो आपको देख के लगेगा कि यू आर नो वेयर इन द कॉम्पिटिशन। इट विल पुश यू फ्रॉम इनसाइड, आपको बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट विल इंस्पायर यू। कहते हैं ना कि बाहर का मोटिवेशन नहीं चलता है इतना, जो इंस्पिरेशन आती है ना अंदर से, दैट ओनली, जब तक अंदर से आवाज नहीं आती कोई कुछ नहीं कर सकता है। सो दैट्स द मेन थिंग हेयर, कि बच्चा जब सामने देखेगा अपने साथ वालों को, तो इट विल उसको सच्चाई दिखेगी कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। और जैसे ही उसको अपनी सच्चाई दिखेगी, तो ही विल फॉर श्योर डू द हार्ड वर्क एंड डू द नीडफुल what is required for that exam, for whichever state you are preparing। आपको आपको पता है कि आपके स्टेट की क्या नीड है और आपको कितनी मेहनत जरूरत पड़ेगी, उसकी लगेगी, तो वो इजीली हो जाता है यहाँ पर। आई सी। और जैसे तन्वी, इफ आई कम टू माय नेक्स्ट पार्ट, जैसे मान लीजिए अब कोई स्टूडेंट है जिसने आप प्रिपरेशन करने का शुरू करा सीवीटी एग्जाम के लिए, अब वो चाह रहा है कि यार मेरे नंबर आ जाए, वो हो जाए, हाउ शुड ही गो अबाउट? अब जो कि मतलब जो टाइम अब आ चुका है, जितना बचा, आपके हिसाब से स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सर स्टिल इन माय ओपिनियन, स्टूडेंट्स हैव इनफ टाइम, क्योंकि उन्होंने एलएलबी करी है, तो मतलब उनके कहीं ना कहीं कंसेप्ट तो क्लियर होंगे ही। उनको बस अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क करना है, मोर और लेस। उनको पार्ट ए, इस बार तो पार्ट ए भी हट चुका है, तो उनको उसका भी लोड नहीं है, सिर्फ पार्ट बी ओनली। बट स्टिल यहीं पर एक कंपटीशन का वो हो जाता है कि सब बच्चे अगर लोग पढ़ेंगे, सभी को, क्योंकि सभी एलएलबी बैकग्राउंड से, तो दे हैव टू वर्क मोर हार्ड। और इस बार हम सोच सकते हैं कि सीयूईटी का लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्योंकि उन्होंने पार्ट ए हटा दिया है। तो या तो कट ऑफ ऊपर जाएगी या पेपर का लेवल अच्छा जाएगा, तो हमें प्रिपरेशन उसी लेवल की लगने वाली है, इतना तो हमें समझ आ ही रहा है। सो इन अगर मैं अभी प्रिपेयर कर रही होती तो मैं ऐसा करती कि पहले पूरे बेसिक्स, जितना मेन टॉपिक है वो पीवाईक्यूज उठाती, उसके साथ साथ लीडिंग केसेस, जो मेन टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन साथ साथ लेते हुए चलती, और जो बाकी जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैंने इग्नोर कर दिया था माय प्रिपरेशन टाइम, मैं उनको भी साथ लेके चलती। क्योंकि अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन दिस एग्जाम, आई थिंक एक एक नंबर विल बी काउंटेड, एक एक नंबर मैटर करने वाला है, चाहे वो टेक्स्ट का हो चाहे वो सीपीसी का हो। बोथ क्वेश्चंस डिजर्व 1 मार्क, तो हमें इक्वली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और अगर आपको सीयूटी क्लियर करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू हैव टू बी वेरी सिंसियर फॉर दैट। तो आपको अभी से ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस करें। हाँ, लास्ट के 1 महीने में यू कैन शिफ्ट योर फोकस टुवर्ड्स ओनली मेजर सब्जेक्ट्स, लीडिंग केस लॉज एंड लीडिंग टॉपिक्स, which I can say। आई सी। और इसमें बेसिकली एक ये भी फैक्ट आता है कि इफ यू नो कि आपको मान लो पहले, जैसे आपने भी तन्वी कहा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका प्रिपरेशन आपका पहले से था, तो आपको उसमें उतना टाइम नहीं लगा, आपको टाइम हाँ लगा जो आपके ऐसे सब्जेक्ट्स में कमजोर हो, या आप मान लो उसमें उतना आपने हाँ पढ़ाई नहीं करी है, तो उसको आपको एक टाइम टेबल बना के प्रॉपरली मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट करी कि पीवाईक्यूज
और एमसीक्यूज की सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पैटर्न को समझे, It's बिना must. प्रैक्टिस, हाँ बिना प्रैक्टिस करे इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ये एग्जाम उतने अच्छे से Not at all कर possible, पाओ, sir. नॉट एट ऑल पॉसिबल, सिंपल सी बात ऑब्वियसली। एंड अच्छा लास्ट ऑफ ऑल, जैसे तन्वी, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि थोड़ा सा परेशान भी होते हैं कि सर मतलब मैं एग्जाम दे तो रहा हूँ, मे बी होगा मे बी नहीं होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, और अगर नहीं कर पाया तो मैं क्या करूंगा। आपका ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है जिनको कि थोड़ा सा होप, या फिर एक कहते हैं कि अंदर से एक डर रहता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, हाउ, मतलब आप क्या कहना चाहोगे? सर, अगर मैं मेरा बताऊं तो जस्ट वन डे बिफोर एग्जाम, दैट वाज ऑफ 8th of June, मुझे इतनी एंजाइटी थी, आई वाज लाइक सिंसियरली, मतलब आई वाज लिटरली कॉलिंग टू माय टीचर कि मैम नहीं हुआ तो क्या होगा। एंड शी सेड ओनली वन लाइन टू मी कि तन्वी, यू हैव नथिंग टू लूज इन दिस एग्जाम, सिर्फ तुम जो भी करके आओ, गिव योर बेस्ट शॉट, और आप आओगे तो आपके पास कुछ बेटर ही होगा। नो डाउट आपको बेस्ट कॉलेज मिले या ना मिले, बट स्टिल यू विल लैंड अप एट अ गुड कॉलेज, इतना तो आप पे विश्वास रख सकते हैं। सर वो लाइन मुझे आज भी याद है, दैट्स व्हाई आई कैन रिसाइट ओवर हियर। और वही लाइन थी जो जिस सोच के साथ मैं एग्जाम देने गई थी। सर दैट वाज द लाइन फ्रॉम माय मेंटर फॉर श्योर। एंड मैं अभी जो कहना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो इट मीन्स यू कैन डू दैट फॉर श्योर। बस आप खुद पे ट्रस्ट कीजिए। मॉक्स में नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, दैट डजंट मैटर। आपका कंसेप्ट कहीं जा रहा है, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, आपको डाउट आ रहा है, अगर आपको सेल्फ डाउट आ रहा है ना, तो सोचो कि यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। क्योंकि अगर आपको सेल्फ डाउट नहीं आ रहा है तो सोचने वाली बात है कि यार, हाँ, क्योंकि जो भी एफर्ट में लगा एस्पिरेंट रहा हूँ होता कि है नहीं, प्रिपरेशन है। अगर एफर्ट लगा रहा हूँ हाँ और अगर सेल्फ डाउट नहीं आ रहा, विच मींस हाँ, मैं एफर्ट ही सेल्फ नहीं मार डाउट रहा हूँ नहीं आ यार। रहा तो आप सच में कंपटीशन में है भी या नहीं, आप सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे, तो दैट्स अ बिग डाउट। तो अगर सेल्फ डाउट है, दैट इज अ गुड साइन दैट यस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम। एंड फॉर श्योर मॉक्स एंड एमसीक्यूज जितना भी आप पीवाईक्यूज लगा सकते हैं ना, मॉक्स के लिए मैं एक पर्टिकुलर चीज बताना चाहूंगी। मैंने लास्ट के 15-20 दिन, एक्चुअली क्या, मैंने सीरीज थोड़ी सॉरी मॉक टेस्ट सीरीज मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा था आई गेस, और मेरे पास जैसे कि मैंने कहा 1.5-2 महीने थे। मैंने ऑन एन एवरेज पर डे 2-2 मॉक लगाए हैं, और हर एक मॉक को मैंने, मतलब मैं कह रही हूँ ना, हैंड रिटन मेरा पूरा एक रजिस्टर था, दैट इज इन माई होम टाउन, अदरवाइज मैं आपको दिखा दी। उसमें मैंने पूरे रजिस्टर में मैंने पूरी गलतियां लिखी हैं कि मेरे ये क्वेश्चन में डाउट है, ये क्वेश्चन मैंने तुक्का मारा है, ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल मेरा रॉन्ग अटेम्प्टेड है। फिर मैंने उसको बार बार रिवाइज किया है। तो जो सब्जेक्ट्स आपने छोड़ दिए हैं वो बस मैंने वैसे ही कवर किए हैं। और अगर आप इतना कर लेंगे तो आई थिंक यू कैन डू दैट। अगर मैं कर डेफिनेटली सकती हूँ फॉर श्योर 1.5-2 महीने में, और उस जो सिचुएशंस थी, तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता कोई भी है। कर सकता है, सही बात है, सही बात है। यस। क्योंकि पॉइंट इज दैट कि देखिए इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि यार मैं मतलब बहुत पहले से प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, या मेरा जो है ये कंसेप्ट नहीं क्लियर है, या मैं कोविड बैच का हूँ। भाई आप समझ लीजिए कि जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है सभी कहीं ना कहीं उसी स्टेज उसी सब चीजों से गुजरे हैं। यस, बस पॉइंट ये होता है आपने कि आप एलएलबी अपने एग्जाम्स दिए हैं, हाँ, पॉइंट वही है, एंड आप कर सकते हो। यू हैव हाँ, क्लियर्ड दैट ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो आता है। बस ऑब्वियस सी आपको बात है, उसके ऊपर की बिल्डिंग बनानी है अच्छे बस से, दैट्स इट। तो आप यही अच्छे से मेन कर बात, सकते आप हैं। अगर समझ गए और आपने प्रिपरेशन अपनी सही से कर ली, कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट इज द बेसिक फंडा है, सिंपल सी बात है। अच्छा, कमिंग टू माय लास्ट क्वेश्चन तन्वी, अगर मैं जैसे एक चीज ये आपसे ये भी पूछूंगा कि जैसे आप प्रिपरेशन करते हुए क्या होता है कि आप तो बहुत ज्यादा कभी कभी ना उसमें चले जाते हो कि मैं इस कॉलेज में जाऊंगा तो क्या होगा, या फिर जो एक डे ड्रीमिंग वाली सिचुएशन आती है कि हाँ यार हो रहा है नहीं हो रहा, या जो आपके दिमाग के भूत होते हैं जो एकदम जाग जाते हैं, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है वो भी हो रहा है, यस। उसको उसको आप कैसे मतलब कंट्रोल में लाते हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा बीएचयू का सोच के बैठी थी कि बस मुझे बीएचयू मिल जाए, दैट वाज लाइक माय लास्ट ऑप्शन। मैंने डीयू का नहीं सोचा था, बस मैं बीएचयू का ही डे ड्रीमिंग करके बैठी थी कि नहीं मैं ऐसे हॉस्टल में, जो कि मुझे लगता है हर एक इंसान करता है नॉर्मली इन दैट इन हिज माइंड। मैंने सिर्फ बीएचयू का सोचा था कि अगर बीएचयू में नहीं हुआ तो वी विल, ठीक है बीबीएयू तो है ही, या नीचे के कॉलेजेस है, आई विल गेट दैट इनटू। बट व्हेन आई गेट इनटू डीयू, सब चीजें हो गई हैं। मतलब आप जो सोचते हैं वो आप कर सकते हैं, इट इज डुएबल। बस आप आपका विजन क्लियर रखिए, और मत सोचिए क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज, लीव दैट ऑन गॉड। आप सिर्फ प्रैक्टिस करते जाइए, मेहनत करते जाइए। आज नहीं तो 2-4 दिन बाद या किसी और एग्जाम में फॉर श्योर यू विल गेट दैट हार्ड वर्क विल पे ऑफ यू। दिस इज द लास्ट मंत्र फ्रॉम माय साइड। पॉइंट पॉइंट, आज नहीं हुआ, इस तो एग्जाम में नहीं कभी हुआ, ना कभी किसी तो और में होगा, आएगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेहनत होगा। कभी ना कभी तो वो पे ऑफ करेगी, सिंपल सी बात है, बस सिंपल सर सी मैंने बात हमेशा जो लाइन की रखी, क्वालिटी ऑफ स्टडी हमेशा मेंटेन करिए। पढ़ रहे हो तो दैट डजंट मीन कि 12 घंटे बैठी हूँ तो हाँ घर वालों को दिख रहा है कि 12 घंटे बैठी हूँ, नहीं। 12 घंटे बैठी हूँ तो उन 12 घंटे का 10:30 से 11 घंटे
हैज टू बी इफेक्टिव। 1 घंटा तो चलो ठीक है, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं अपना भी हो जाता है, ह्यूमन ब्रेन है, बट 11 घंटे इट मीन्स इट इज इफेक्टिव, सो इट वाज एफिशिएंट। एफिशिएंसी एंड क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी उसमें, हाँ, इज वेरी इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंगली। नहीं ठीक है, थैंक यू वेरी, मतलब मुझे लगता है तन्वी की जो बातें आज आपने बताई हैं और कैसे प्रिपेयर करना है, और एक बात ये होती है कि इवन दो मान लो मैं अगर आप थोड़ा सा एक चीज पे भी थोड़ा सा अगर मैं एक लास्ट उसमें जाऊंगा कि आप ये भी मान के चल सकते हो, जैसे मान लो जो आपका स्कोर पे अगर बात करूं, अगर कोई बंदा टॉप भी कर रहा है, मान लो उसका बहुत ज्यादा भी आया, आपका मान लो थोड़ा कम पे ही रह गया, लेकिन तब भी आप ये तो समझो यार कि ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि फर्स्ट राउंड है तो सेकंड राउंड में नहीं होगा, सेकंड राउंड है तो थर्ड राउंड नहीं होगा। आपको मेहनत अपनी यस, करनी है, थोड़ा स्कोर अगर कम भी आ गया तो भी देखो, अभी हो सकता है दैट सिचुएशन डजंट ऐसी मैटर। बने, दैट डजंट मैटर, हो सकता है सिचुएशन बैठे आपको सिलेक्शन वही उसी नंबर की हो जाए, बिकॉज ऐसा क्लैट में भी हुआ। क्लैट में देयर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि परेशान थे कि सर हमको हमारा मनचाहा कॉलेज नहीं मिल रहा बिकॉज हमारे नंबर कम है या वो है, बट यहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस है वो थोड़े ऐसे चेंज हो गए कि उनको वो कॉलेज मिल रहे हैं, तो कुछ जगहों पे कट ऑफ ऊपर था नीचे आया, कुछ जगहों पे नीचे से ऊपर गया, तो सब कुछ सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है, डिपेंड इस पे है, आप अपना बेस्ट एफर्ट दो, दैट इज वेरी वेरी, ये मेरा कहीं ना कहीं सर रहता है आई कि टोटली एग्री विद यू सर, क्योंकि मैं खुद भी यही मानती हूँ कि इट्स लाइक अ 100 मीटर रेस। 98 तक आपको आपका हार्ड वर्क लेके जाएगा, देन 98 या 99 के पॉइंट पे आपका लक ऐसे लेके बैठा होगा कि यस, देन वो सोचेगा कि मैं लेके जाऊं या नहीं लेके जाऊं। अगर उसको आपकी हार्डवर्क, आपकी मेहनत दिखेगी ना, फॉर श्योर वो आपको 98 से 100 तक लेकर जाएगा, मिल जाएगा, फॉर बिल्कुल श्योर बिल्कुल। लेकर जाएगा, ट्रस्ट मी। भगवान पे and खुद पे विश्वास रखोगे ना, हर एक एग्जाम निकल सकता है। निकलता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, वो बात बिल्कुल सही कही आपने। तो अकॉर्डिंगली आई थिंक दैट्स द कि ओनली तन्वी, थिंग आई बिलीव। हाँ नहीं तन्वी ये बात बिल्कुल सही है, मतलब मुझे लगता है कि ये सेशन जो है व्हेन कोई स्टूडेंट देखेंगे जो भी यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं उनको काफी कुछ सीखने मिलेगा, काफी कुछ नया एक पता चलेगा, तो आई होप कि वो काफी से सीखे, एंड अकॉर्डिंगली थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया और आपने अपना जो स्टोरी था वो अपने साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन तन्वी।